So, are you following what I've been doing? I'm hoping you guys are in the 11th standard. So, do you know some of relations and functions? What that is, or do I need to start from the beginning? Please start from the beginning. Did you not see the lectures 1 to 3? No, ma'am. I'll just quickly kind of recall what maybe. So have you have some idea? Do you have some idea about it? Ma'am, I know the concept of partition, so that You know the concept of partition product. Great. yes. Then okay. And what about then if these are two sets given to you, A being 1, 2, B being 3, 4, 5. So can you tell me what will be the Cartesian product of A and B? Yes, ma'am. What will it be? Can you say it out loud? A cross B will be in like we write the elements in the set form in curly bracket. First element 1 3, the second is 1 4 1 5, and 2 3 2 4 2 5. Okay, okay. Yes, very good. And similarly, you can write B cross A as well, right? So Yes, these are the ma'am. order. These are the ordered pairs. You cannot say that 1 3 is equal to 3 1. No, these are two different elements of the set, right? Yes, ma'am. Then there were some remarks कि दो elements equal तब होंगे जब उनका first element equal होगा A equals to B and B equals to D, तभी और तभी दो elements equal होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के. फिर था कि अगर P में एलिमेंट्स हैं, कैपिटल P सेट में एलिमेंट्स है P, कैपिटल Q सेट में एलिमेंट्स है Q, तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट्स होंगे? दोनों का मल्टीप्लाई PQ. Okay. Then I'm just recalling the major part. Okay. So we can do one question related to this so that it will be better for your understanding. So okay, can you try to solve this question? It's easy. The Cartesian product of A cross A has 9 elements, among which are found 0 1. You have to find the set A and the remaining elements of A cross A. Can you try to do this question? Do you Yes, get what ma'am. do you get what the question is? Yes, ma'am. Can you try to solve it? Yes, ma'am. That's coming. Yeah. MK Singh, can you speak? Yes, ma'am. Yeah, hi. So, are you following what I'm saying? Ma'am, actually, I'm following. You have watched the 3 lectures? No, ma'am. This is first. This is the first. Yes, ma'am. So, do you have any idea about relations and functions? Yes, ma'am. Relation is a Cartesian product. That's it.
No, relation is a subset of a Cartesian product. Yes, ma'am. Subset of Cartesian product. So can you try to solve this question? I hope you know what the Cartesian product is. Okay, ma'am. I will try. Okay. Yeah, please try. Sunanda, were you able to solve this? Sunanda, Yes, ma'am. were you able to solve this? Yes, ma'am. So, A cross A, here we have given two elements of A cross A, which is -1, 0, and 0, 1. No, no. So, First, no. Okay, tell me. yeah, so first we Yes. have given the total number of elements. So A cross A has Yeah. 9 elements. So 9, we can write 9 as 3 cross 3. It means A has 3 elements. Yeah. So basically, the idea is that the cardinality Yeah. meaning the number of elements in the set. So the n of A cross A is Na into Na, which Yes. is given to be 9. So this becomes Na square. So Na will be under root 9, right? So yes, so A will be 3, ma'am. Yes, ma'am. 3 elements in the set A. what will be those elements? Ma'am, So, 0, yeah, 1, now, 1. Yeah, 0, 1, and -1, right? Is that 5? Yes, ma'am. Yeah, so you can now easily calculate what A cross A is. I will not go into the details of that. Yes. I can calculate that. Yeah, so do you guys know now what a function is? Yes, ma'am. Function is a special type of relation. Yes, very good. So okay, so we can do some questions related to that, right? Yes. So firstly, tell me, and what is the definition of function? What is the speciality that makes it a function? Ma'am, if every element of domain is related to element in codomain and each has a specific image of each element. Yeah, yeah, not a specific image, only and only one image. Meaning Yes, ma'am. Yes, ma'am. that, yeah, so if this is your domain, this is your codomain, and this is some function, then this cannot happen. That one element cannot have two images, right? But this can happen that two elements can go to the same image. So I like to say it with an analogy that one bullet cannot go to two different points, but two bullet can go to one point. So if this is happening, then it's not a function. But if this is happening, this can or this cannot. But if this is happening, then you can say that it is a function. That this is not defining the definition of the function. All right. So related to this, see that the relation f is defined as fx equals xq. This is a question. Please try to solve it for 0 x between 0 and 3 and 3x for x between 3 and 10. Then and g is defined to be x square for x between 0 and 2 and 3x for x between 2 and 10. Can you tell me which one of these is a function and which one is not? Ma'am, first one is the function and second one is not a function.
Yeah, why is that? Because there are this is second one is a square function, and it has more than one image for that. No, that's not true. This so if one is, say if I take x to be 1, then x square will be 1 only. It cannot have more than one image, no? Yes, ma'am. That is not the correct reason. Try to think once more. Sunanda, are you there? Yes, ma'am. So for gx, if we take x equal to -3, Okay, x equals to -3. no, ma'am. What did you say? Just try to see where the function is breaking. यहाँ पे वो 3 पे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे वो 2 पे ब्रेक हो रहा है, और वहां पे देखो क्या हो रहा है. Okay, yes, ma'am. Got the point. So if we Yeah. take x equal to 2, so Yeah. we will get the two values. Like for x square, we get 4 and 3 into 2 is. So for x Yes, equal to 2, it like यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है. हाँ, तो अगर मैं इसमें कंसीडर करूंगी 2 को, तो मेरे पास 4 आ जाएगा, और इसमें करूंगी तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, विच कैन नॉट हैपन, राइट? Yes, दैट ma'am. मैंने अभी कि अगर ये 2 है तो 2, 4 और 6 दोनों पे नहीं जा सकता फॉर इट टू बी अ फंक्शन. तो g इज नॉट अ फंक्शन. व्हाट अबाउट f? Is f a function? Hello? Yes, ma'am. Is f a function? Then for x, Yeah, for x. Fx is not a function Why? because 3 x cube is also there and 3x is also there. Yes, but if I take x equals to 3, तो x cube क्या होगा? 27. And 3x, sorry, यहाँ पे x square है. x square क्या होगा? Ma'am, 9. हाँ, और 3x? 3x, ma'am, 9. हाँ, तो this becomes a 3 पे सिर्फ 9 ही वैल्यू ले रहा है ना? Ma'am, but it was x cube earlier. हाँ, yeah, sorry. If it is x square, then it is a function. अगर x cube होता तो function नहीं है. ठीक है ma'am. You were correct there, but यहाँ पे x square था. Okay. So now, what is a domain of a function? The domain of a function fx. क्या होता है domain of a function? so ma'am, the set of numbers, the Yeah. set of numbers x for which fx is defined. Yes, set of numbers x for which, I mean, this should be real numbers. Yeah, x for which fx is defined. By defined, you mean, what does this mean? That fx is real and finite. मतलब कुछ infinity 1/0 टाइप का या 0/0 टाइप नहीं, indefinite फॉर्म नहीं बननी चाहिए, right? Yes, ma'am. So those x will be in the domain. तो अगर suppose fx ऐसा है such that fx equals to say gx by hx, तो इसकी डोमेन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? एंड gx एंड hx मैं बोल रही हूँ अगर पॉलिनोमियल है. Ma'am, hx will not be equal to 0. या सो वो सारे x such that hx is not equal to 0, right?
और सिमिलरली अगर मेरे पास है gx बाय अंडर रूट एच एक्स और अगेन एच एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होना बहुत जरूरी है क्योंकि पॉलिनोमियल ऐसा फंक्शन है जो हर आर पे डिफाइंड है, तो सिर्फ दिक्कत वही देगा जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और अगर अंडर रूट है तो वो सारे एक्स जहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल दोज एक्स सच दैट, ये इसको बोलते सच दैट क्या होगा, अंडर रूट डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए हमें, अंदर वाला फंक्शन रियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। अंडर रूट माइनस Yes, तो ma'am. नहीं पढ़ा होगा ना आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स आई थिंक अभी, और हम अभी रियल में बात कर रहे हैं, सब हम कॉम्प्लेक्स पे नहीं जा रहे हैं। तो वो सारे एक्स सच दैट एच एक्स स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, 0 भी नहीं आ सकता क्योंकि फिर से नीचे 0 बन जाएगा विच वी डोंट वांट, राइट। और रेंज क्या होता है फंक्शन का, व्हाट इज द रेंज ऑफ अ फंक्शन, मैम रेंज इज लाइक a subset of codomain. हाँ, और उसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं यस मैम। और कैसे एलिमेंट्स आते हैं रेंज में, रेंज में मैम जो एलिमेंट रियल नंबर मतलब जो डिफाइंड हो उसके लिए फंक्शन के लिए। ठीक है। नहीं, उसको तुम ऐसे बोलोगे मैथमेटिकली कि अगर कोई फंक्शन है f तो उसकी रेंज में आएंगे वो सारे पॉइंट्स y इक्वल्स टू एफ एक्स, और x कहाँ से आ रहा है, x कहाँ से आ रहा है, डोमेन से मैम। डोमेन से, राइट। तो वही सारे पॉइंट्स जो किसी ना किसी डोमेन की इमेज है, डोमेन के एलिमेंट की इमेज है, तभी वो कोडोमेन का सबसेट बनता है, पूरा कोडोमेन नहीं बनता कई बार, ठीक है। तो मैं x लेती जाऊंगी डोमेन में से और f लगाऊंगी x पे, तो जो सब एलिमेंट्स का सेट बनेगा उसको क्या बोल दूंगी, रेंज ऑफ अ फंक्शन। ओके, तो क्वेश्चन, अगर एफ एक्स है माइनस ऑफ मॉड एक्स तो इसकी डोमेन और रेंज बताओ। मॉड एक्स फंक्शन पता है कैसे डिफाइंड होता है, मैम डोमेन इज ऑल रियल नंबर एंड रेंज विल बी नेगेटिव नंबर। yes, very good, negative r or r minus type, right, or we write it as minus infinity to 0, ठीक है। ये तो सीधा फंक्शन था, तुमको दिख गया। पहले ये बताओ कि माइनस मॉड एक्स डिफाइंड कैसे है, एफ एक्स को मैं कैसे लिखती हूँ माइनस मॉड एक्स में, मैम माइनस ऑफ माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 यस, एंड माइनस and ऑफ एक्स minus of x is greater than 0. yeah, so this becomes x less than equal to 0 और minus x तो ये सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, x लेस देन 0 भी और x ग्रेटर देन 0 भी इसका डोमेन में आ रहेगा। लेकिन जब मैं वो करूंगी f लगाऊंगी उन पे, तो एक माइनस आ रहा है साथ और मॉडुलस आ रहा है, और मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा, तो और इस माइनस की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए पूरे नेगेटिव रियल लाइन कवर हो जाएगी। सॉरी, दिस शुड बी माइनस इंफिनिटी ओपन एंड 0 क्लोज्ड। इसका मतलब पता है ना, इसका मतलब कि 0 भी सेट में है। इंटरवल्स लिखना पता है ना, आई डोंट नो यू गाइस नॉट, या ओके ओके, सो मैम एक क्वेश्चन है रेंज का। हाँ बताओ। मैम अगर रेंज फाइंड करना है, एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर 1/2 माइनस कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर 1/2
2 minus cos x डिनोमिनेटर में। यस हाँ। मैम। हाँ यही है। यस मैम। तो इसको ऐसे करते हैं, जब ये सब फंक्शंस होते हैं ना तो इसको तुम लोग ऐसे कर लिया करो कि cos x किसके बीच में आएगा, cos x की रेंज क्या होती है? -1 से 1। हाँ -1 से 1। अब ये जो ये फंक्शन बनाने के लिए इसमें सब अलजेब्रा करते रहो। पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाएंगी। ये पता है ना? यस मैम। हाँ तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस दिस और फिर 0, नहीं सॉरी -1। ठीक है। और अब क्या है, इस फंक्शन को बनाने के लिए मेरे को 2 ऐड करना है। तो 2 - 1, 2 माइनस cos x ग्रेटर देन 2 - 1। मैंने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पे। हाँ प्लस है ना, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया। यस मैम। हाँ तो अब तो पता चल गया ना क्या होगा। और अब जब मैं रेसिप्रोकल लेती हूँ तो वापस इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाती है, ये भी चेंज। पता है। यस मैम। हाँ तो ये हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या था fx, तो ये fx की रेंज क्या आ गई 1/3 से 1। ठीक ओके है। मैम, थैंक यस मैम, थैंक यू। हाँ तो बट ये आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि ये क्वेश्चन इजी था। इजी क्यों था? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास बस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। अगर तुम्हारे पास ऐसे होता 2 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, अब इसकी रेंज निकालना इज नॉट दैट इजी। ओके, बट ऐसे फंक्शंस की जहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होता है ना, उसकी रेंज निकालना इज प्रीटी इजी। तो हर क्वेश्चन में तुम्हें देखना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे मैम उसका रेंज? ये तो यार एक रैंडम फंक्शन था, इसका रेंज निकालना जरूरी नहीं कि हर फंक्शन जो गिवन हो तुम उसका रेंज मैन्युअली निकाल पाओ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ऐसे ही फंक्शन आता है जिसका रेंज तुम बाय किसी ट्रिक से निकाल सकते हो, कि किसी फंक्शन का रेंज पता है और फिर इधर उधर करके कुछ मैनिपुलेशन करके तुम रेंज निकाल सकते हो। बट फॉर एवरी फंक्शन यू कांट डू दैट कि कोई रैंडम फंक्शन कोई तुम्हें उठा के दे दे और बोले रेंज निकालना है, इट्स नॉट पॉसिबल। डोमेन इज इजी, डोमेन इज फाइन। ठीक है। यस मैम। हाँ Oh, ये वाला। uh, हाँ यस यस। can you give an example जहाँ पे दो trigonometric function involved हैं? Can I give an example? Okay, let me see. इतने आप लोग ये वाला क्वेश्चन करो. I'll try to find some. Can you till then find the range of fx equals 9 minus x square? ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं तुम लोगों ने? यस मैम, ये तो हो जाता है। हाँ ये हो जाता है ना। कैसे क्या आता है, कैसे करते हो? मैम एक्स के लिए तो पहले एक्स डिफाइंड होना चाहिए, तो उसके लिए पहले अंदर का फंक्शन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। राइट। तो कैसे कब डिफाइंड होगा ये? जब मैम 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एग्जैक्टली तो वो कब कब होगा? वो आता है निकालना, सब इनइक्वालिटी सॉल्व करना। यस मैम, वो आता है। 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स, फिर उसको तुम रियल लाइफ पे देखते हो -3 3, राइट? यस मैम, बेबी कर्व मेथड। हाँ तो ये क्या होता है, एक्स क्या होता है इसके लिए, क्या होगा एक्स? मैम एक्स जो होगा वो -3 से 3 के बीच में। और अब रेंज कैसे निकालते हो?
मैम रेंज के लिए तो हमको देखना पड़ेगा कि उसमें डोमेन में कहाँ से कहाँ तक रेंज आएगा। तो हाँ, तो देखो कैसे देखोगे, वही तो है मेन क्वेश्चन, रेंज ही है, डोमेन तो ठीक है, ट्राई करो। रेंज निकालने के लिए मोस्टली क्या करते हैं कि ये तुम्हारा y है, तुम्हें गिवन है ये, तो तुम क्या करते हो कि तुम अब फंक्शन को उल्टा करते हो, इन्वर्स करते हो। इन्वर्स करते हो मतलब यू ट्राई टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें अब x पता है कि कहाँ पे है, x तुम्हें पता है यहाँ से यहाँ है, और जब तुम x को निकालोगे इन टर्म्स ऑफ y, तो तुम निकाल पाओगे कि y कहाँ लाई करेगा। हमें यही निकालना है ना कि y कहाँ पे लाई करेगा जब x -3 से 3 के बीच में, राइट? यस मैम। समझ में? हाँ, तो अभी करने की कोशिश करो ऐसे। ओके पहले x को निकालो इन टर्म्स ऑफ y। मैम रेंज भी सेम होगी इसकी। कैसे निकालना? मैम अगर x को लिखेंगे y के टर्म्स में तो वही आएगा मैम, नाइन हाँ, रूट नाइन माइनस क्या आ रहा है? रूट नाइन माइनस वाई वाई स्क्वायर आएगा। तुमने ऐसे निकाला होगा ना, इसको स्क्वायर किया 9 माइनस, इस इक्वेशन को स्क्वायर किया, y स्क्वायर इक्वल्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या आ गया 9 माइनस वाई स्क्वायर। यस मैम। तो यहाँ से x क्या आएगा? मैम प्लस माइनस रूट नाइन माइनस वाई स्क्वायर। राइट। अब तुमने क्या किया? अब मैंने मैम x की वैल्यू देख ली कहाँ पे डिफाइंड होगी। हाँ, अब x यहाँ पे फाइनाइट है, राइट? तो इसको भी, राइट हैंड साइड को भी फाइनाइट होना पड़ेगा। यस मैम। राइट हैंड साइड फाइनाइट कब होगी? जब 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। हाँ, तो y क्या आ जाएगा अगेन -3 से 3, जैसे तुमने पहले किया था। यस मैम। लेकिन ये रेंज नहीं है। क्यों नहीं है? अभी तुम देखो, अभी जब रेंज निकालनी है तो तुम्हें सब कंडीशंस ध्यान में रखनी है जो y पे लगा सकते हो तुम, ठीक है? तो ये सही है, दिस इज मतलब जो रेंज है वो इसका सबसेट होगी फॉर श्योर, क्योंकि y इधर ही लाई कर सकता है। हमने देखा कि जब x -3 से 3 में होगा तो y इधर ही लाई करेगा फॉर x टू बी फाइनाइट। बट यू ऑल्सो हैव टू सी कि क्वेश्चन में गिवन है y क्या है, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? यहाँ पे ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? मैम ये पॉजिटिव होगा तो 0 से 3 रेंज होगी। एग्जैक्टली, तो y की रेंज क्या होगी? 0 से 3, मतलब f की रेंज क्या होगी? 0 से 3। तो ये प्लीज ध्यान में रखना, तुम्हें हमेशा ऑप्शन में ये भी गिवन होगा और ये भी गिवन होगा, ठीक है? सो यू ट्राई टू पुट वट एवर कंडीशन यू कैन ऑन y एंड देन ट्राई टू फाइंड वॉट y कैन बी। ओके मैम। Sunanda, is it clear to you? Yes, ma'am. Okay. So one question I could find, like you were saying, were कि अगर fx तुम्हें given है sin x का mod प्लस cos x का mod, इसका वो निकाल सकते हो डोमेन और रेंज।
Can you try to do this? मैम डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा Yes. एंड रेंज विल बी 0 to √2. Zero कैसा आया? एक्चुअली मैम नहीं 0 तो नहीं होगा मैम √2 तो मैक्सिमम वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू का मुझे थोड़ा सा डाउट है √2 मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली? मैम a sin x plus b cos x की मैक्सिमम वैल्यू मतलब वो होती है ना √a² plus b². ये तुम्हें पता है, ये फैक्ट है. यस मैम ये होती है मैं पढ़ा है मैंने ये. हाँ, ये उस वो नहीं पता कि कैसे निकलती है, राइट? यस मैम ये तो नहीं पता है. ठीक है, तो अभी देखो इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, जब मॉड आता है ना, तो व्हाट यू कैन ट्राई टू डू इज ट्राई टू स्क्वायर इट एंड सी. जैसे तुम्हें ये पता है कि fx हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, राइट? यस मैम तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि किसी भी कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी x की जहां पे वो 0 ले रहा हो, क्योंकि साइन और कॉस कभी भी ऐसी वैल्यूज नहीं देंगे ना. अगर किसी ने 0 लिया तो उसी वैल्यू पे दूसरा कोई पॉजिटिव नंबर ले लेगा. Am I making sense to you guys? यस मैम Yeah. So fx is this. अब f square x करो, उसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा? a square plus b square. Right? And this is nothing but sin square x only. Mod of a square is a square plus cos square x plus sin 2x. Right? यस मैम इसका मॉडुलस, राइट? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 sin x cos x का मॉड, अंदर लिख तो sin 2x. अब ये क्या है? 1. अब कर सकते हो, अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया. यस मैम तो अब इसकी रेंज क्या होती है? मॉड sin 2x कहाँ से कहाँ लाई करेगा? मैम 0 से स्टार्ट होगा हाँ, और 1 तक. एग्जैक्टली. तो अब तुम प्लस कर दो इसमें 1, क्योंकि तुम्हें यहाँ ये लाना है. तो क्या हो जाएगा? 1 से 2. हाँ, तो रेंज क्या हो गई? मैम fx² की रेंज आई है 1 से 2. एग्जैक्ट, गुड. fx स्क्वायर की रेंज आई है 1 से 2. अब तुम्हें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट पता है? नो मैम नहीं पता. ओके, तो ठीक है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग कहते हैं तब जब अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू y है या फिर x ग्रेटर देन y है, तो fx की वैल्यू भी ग्रेटर देन fy है. मतलब अगर x मेरा बढ़ रहा है, मैं इस साइड पे बढ़ रही हूँ x के साथ, तो मेरा y भी बढ़ रहा है इस ग्राफ में, राइट? ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आई डोंट नो कब पढ़ोगे तुम लोग ये, कौन से चैप्टर में. आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है और उसके साथ f की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है वो. और अगर फंक्शन कुछ ऐसा है कि अगर x की वैल्यू तो बढ़ रही है, कि मैं अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रही हूँ, तो fx क्या है ये, लेकिन fy क्या है ये. मतलब fy की वैल्यू कम हो गई. मतलब अगर x ग्रेटर देन y है, या उल्टा लिख लो तो x लेस देन y है, तो fx क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाएगा. ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? मोनोटोनिकली. अभी मैं इक्वालिटीज पे नहीं जा रही हूँ, मैं बस आइडिया देना चाह रही हूँ कि कैसा है डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, समझ में आया ये? मैम समझ में आया या नहीं आया? रिपीट करूं? यस मैम हाँ, तो अब तुम क्या करते हो कि अगर अगर कोई फंक्शन है, सपोज g कोई फंक्शन है,
और अगर g डैश x उसका पॉजिटिव है ना, तो g को हम बोलते हैं कि g हमेशा इंक्रीजिंग होगा। ये एक बहुत फंडामेंटल थ्योरम है कि अगर कोई फंक्शन है, मैं बहुत रफ तरीके से लिख रही हूँ कि अगर कोई फंक्शन है g और उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो g इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो अब तुम देखो कि gx अगर मैं ले लूं x टू द पावर 1/2, तो ये फंक्शन कैसा होता है? ये फंक्शन पे ग्राफ पता है? यस मैम, ये मैम मतलब पैराबोलिक होता है। और ये इंक्रीजिंग ऐसा टाइप का ही हो रहा होता है, ये पता है तुम लोग को? यस मैम। ये अब क्या तुम बता सकते हो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग होगा? मैम डिक्रीजिंग। कैसे? मैम इसका ग्राफ थोड़ा सा मतलब कॉनकेव जैसा मतलब डाउनवर्ड की तरफ हुआ। नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉनकेव कॉन्वेक्स से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। देखो इसका ग्राफ ऐसा आता है ना, यस मैम। तो अब देखो तुम, अगर मैं x सपोज यहाँ पे 1 लूं, यहाँ पे 2 लूं, तो f1 ये है, ये पॉइंट होगा f1, और f2 क्या होगा? ये पॉइंट होगा। तो x की वैल्यू अगर बढ़ी तो f की वैल्यू भी क्या हुई? बढ़ रही है मैम। बढ़ रही है ना। जैसे जैसे मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, वॉट एवर रैंडम पॉइंट, अगर x और y में ये रिलेशन है कि x लेस देन y है, तो fx भी क्या है? ये ग्राफ मेरा थोड़ा वो है, बट fx भी क्या है? अगर x कोई पॉइंट है, x और y पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव फंक्शंस के लिए डिफाइंड है, x और y पॉजिटिव है, तो fx भी क्या है? ये नहीं समझ में आ रहा है? मैम आ रहा है मैम। तो अगर x लेस देन y है तो fx भी क्या है? लेस देन फाइव। लेस देन fy है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ये सब कहानी क्यों बताई है कि अब यहाँ पे देखो कि एफ स्क्वायर एक्स है, हमें एफ एक्स पे जाना है, राइट? एफ एक्स पे जाना है ना, यस मैम। तो एफ स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है। और तुम्हें पता है कि एक्स, अगर मैं जी एक्स कोई फंक्शन लेती हूँ एक्स टू द पावर 1/2, तो जी एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ बेसिकली कि अगर x लेस देन y है, एफ एक्स लेस जी एक्स लेस देन जी वाई है, मतलब जब मैं x से g पे जाऊंगी तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, यस मैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे तुम लोग जब जब तुम 2 लेस देन 3 करते हो और -2 को ग्रेटर देन -3 कर देते हो, यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं -x फंक्शन लेती हूँ ना, तो ये एक ऐसा, सॉरी, 0 में से पास करेगा, ये ऐसा फंक्शन बनता है, राइट? एफ एक्स इक्वल्स -x, यस मैम। तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। देख पा रहे हो? कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ये कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए ये इनइक्वालिटी की वैल्यू चेंज हो गई। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या करा, x तुम्हारा अगर 2 है और y तुम्हारा 3 है, x लेस देन y है, तो f मुझे पता है, अगर मैं इस पे f लगाऊंगी जहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू -x है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन एफ वाई हो जाएगा। इसका मतलब -x ग्रेटर देन -y हो जाएगा। इसीलिए जब तुम नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी में चेंज आता है। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे
यहाँ पे इनइक्वालिटी में अगर मैं इसकी पावर हाफ लेना चाहूँ, मतलब यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस कंपोज कर रही हूँ इस पूरे इसको उसके साथ जी एक्स पावर 1/2 के साथ। ठीक है, तो रफली मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें पावर हाफ लेना चाहूँ तो ये इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक्स टू द पावर हाफ मेरे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यस मैम, समझ रहे हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमें जब जब एफ मतलब सपो किसी फंक्शन जिसमें एफ इन्वॉल्व है उससे एफ पे जाना होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि उस पे एफ पे जाने के लिए जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उससे इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी की साइन में चेंज आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि x टू द पावर 1/2 इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं सीधा 1/2 पावर दे सकती हूँ हर जगह पूरी इनइक्वालिटी में, तो मेरे पास आ जाएगा 1 लेस देन fx लेस देन √2। तो इसकी रेंज क्या हो गई, जैसे तुमने बोला था कि मेरे को पता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू √2 ही हो सकती है, दैट यू आर राइट अबाउट, बट हमें रेंज निकालनी है। अगर तुम सिर्फ ये लिखते कि fx लेस देन √2, वो रेंज नहीं होती, वो कोडोमेन होती। ठीक है, तो fx की रेंज मतलब f की रेंज क्या आ गई, f बिलोंग्स टू 1 to √2। इज दैट फाइन? यस मैम। ओके, व्हाट एल्स कैन वी डू? ओके, कुछ इनइक्वालिटीज पर क्वेश्चन कर देते हैं। ये सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x -1 क्वेश्चन समझ में आया? सुनंदा, तुम कुछ बोल नहीं रही हो, आर यू देयर? Yes, ma'am. समझ में आया पिछला क्वेश्चन मैंने क्या बताने की कोशिश करी? Yes, ma'am. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये प्रॉपर्टीज पता है क्या इसकी, मॉडुलस की, कि अगर मॉड x लेस देन a है तो x कहाँ लाई कर रहा होगा? a पॉजिटिव ऑफ Yes. कोर्स। Yes, ma'am. हाँ, x कहाँ लाई कर रहा होगा बताओ? अगर मॉड x लेस देन a है तो x कहाँ पे होगा? -a to a। -a to a। वो सारे पॉइंट्स हैं जो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से लेस देन a है, वो यही होंगे। ठीक है, और x अगर ग्रेटर देन a है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट? अब ये प्रॉपर्टी ध्यान में रख के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। Yes, ma'am. Try करते हैं. हाँ, प्लीज करो। कैसे स्टार्ट करोगे? एम के, तुम अपना नाम बता सकते हो? एम के, आपका पूरा नाम क्या है? हेलो, Yes, ma'am. I'm trying to solve. सॉल्व कैसे करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा बताओ, शुरुआत कैसे कर रहे हो? तो मैम मॉड फंक्शन की प्रॉपर्टी पहले अप्लाई करेंगे. हाँ, क्या लिखा फर्स्ट लाइन, क्या लिखा? और तो हम पहले तो x माइनस मॉड ऑफ x -1 -5 ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 है. उसके बाद आफ्टर दैट तो मॉड ऑफ x -1 है. देखो यहाँ पे ऐसे करो, तुम्हें पता है कि जब जब x क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू a होता है, तो x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा होता है? -∞ से a। यस मैम. हाँ, यूनियन यूनियन a से इंफिनिटी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, राइट? यस मैम. तो अभी तुम्हारे पास इस x की जगह क्या है, ये पड़ा है अंदर, यस मैम. तो इस पे लगा दो ये वाली प्रॉपर्टी की। क्या होगा कि x -1 -5 या तो क्या हो सकता है, लेस देन इक्वल टू -2, और क्या हो सकता है, x -1 -5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 2.
ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ना, इसको x Yes, मानो, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर दो अलग अलग। अब तो आता ही है तुम्हें। अब यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वन लेस देन इक्वल टू 3 और Yeah. x माइनस X वन minus हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 7. हाँ। अब मुझे आंसर बताओ फाइनल। अब हो जाना चाहिए ना। Yes. हाँ करो। वो कौन गया? MK सिंह, आर यू देयर? यस मैम। आपका नाम क्या है, पूरा नाम? मैम मन्नी। ओके, आपने ट्राई करा? यस मैम, आई एम ट्राइंग। ठीक है, बताओ इतना टाइम लगना चाहिए? अभी तक तो हो जाना चाहिए। मैम मेरा आंसर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी टू -6 यूनियन -2 टू -4 यूनियन 8 टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से -6 यूनियन -2 टू -4 देन यूनियन 8 टू इन्फिनिटी। ये सेट सेंस बना रहा है। मैम यही आ रहा है, मतलब इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद। ये गलत कर रहे हो ना कुछ, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना। मैम 4 होगा +4। हाँ, ये तुक्के नहीं बढ़ाने हैं यहाँ। यस मैम। सुनंदर, were you able to do it? No, ma'am. Please let Do you want me to do it for you or you are trying? ma'am. Ma'am, can you please explain like? Yes, yes, of course. So ये कैसा क्या हो रहा है यहाँ पे? हमारे पास दो इनइक्वालिटीज आ गई कि हमें ये पता चल गया कि x ये भी सेटिस्फाई कर सकता है और x ये भी सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है। अब तुम वापस से अब तुम्हें ये पता है कि अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू a है तो x कहाँ से कहाँ होगा, -a से a में। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसी टाइप की इनइक्वालिटी पड़ी हुई है, मॉड x लेस देन टाइप की। तो तुम्हें क्या पता है कि x-1 कहाँ से कहाँ होगा इस वाली प्रॉपर्टी से? -3 to 3. यस। और हमें हमेशा x पे जाना होता है, हमें सॉल्व फॉर x करना है, तो x प्लस करने पे आ जाएगा 1 प्लस कर दूंगी दोनों साइड। -4. ठीक है, तो एक x आ गया, ये या तो x ऐसा हो सकता है और अब इसको भी सॉल्व करने पे कुछ x आ सकता है। अब यहाँ पे भी Yes, प्रॉपर्टी हाँ, तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगा दोगे कि x-1 लेस देन इक्वल टू क्या हो सकता है, बताओ। ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ कि x -7 से लेस देन। x ग्रेटर देन इक्वल टू a है मॉड x, तो x कहाँ से कहाँ हो सकता है, -इन्फिनिटी टू a यूनियन a टू इन्फिनिटी। यस मैम। हाँ, तो x-1 लेस देन इक्वल टू क्या हो सकता है, 7। -7 और मॉड नहीं आएगा। x-1 is less than equal to -7 और x-1 is greater than equal to 7. एग्जैक्टली तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू -6 और यहाँ से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है। अब आई होप तुमको ये पता है कि कब यूनियन लेना है और कब इंटरसेक्शन लेना है, राइट? ये पता है, ये कैसे तुम करोगे? ये बहुत ध्यान से करना, ये नहीं करना कि -2 से 4 इंटरसेक्शन, यहाँ पे -6 से इन्फिनिटी कर दिया, 8 से इन्फिनिटी इंटरसेक्शन कर दिया, नहीं। यू हैव टू थिंक एंड देन राइट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमें ये सॉल्व करना था कि ऐसे कौन से x हैं जिसकी वैल्यू मॉड ऑफ मॉड x-1 -5 करो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आए। तो मैंने देखा कि ऐसे x हो सकते हैं जो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहे हैं या तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब जब और चलता है ना, तब तब क्या आता है, या तो ये और में yes ma'am, और में यूनियन लेते हैं एंड के टाइम इंटरसेक्शन लेते हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तुम्हें और का मतलब है या तो ये या तो ये या तो ये, और यूनियन का भी मतलब ये होता है ना कि या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे।
लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब होता है यहाँ भी होना चाहिए और उस सेट में भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे हमेशा और ही चलता आ रहा है, तो हमारा सेट क्या बता, हमारा एक्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा होगा, या तो -2 से 4 में आ सकता है, या तो फिर x लेस देन 6 तो -6 से इंफिनिटी हो सॉरी -इंफिनिटी से -6 हो सकता है, या ग्रेटर देन 8 तो 8 से इंफिनिटी हो सकता है। इनफैक्ट तुम्हें ऐसे लिखना चाहिए, ये छोटा सेट है तो यू शुड राइट इट लाइक -इंफिनिटी से -6 यूनियन -2 से 4 यूनियन 8 से इंफिनिटी। तो x यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या यहाँ भी हो सकते हैं। कहीं से भी x आए, वो सारे x इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इज दैट फाइन? Yes, ma'am. Oh, time is up, right? Would you like to do one more question or take it as a homework? Try that. Yes, ma'am. Please give. Yeah. Try to do this question. Find the domain of ठीक है, सिर्फ डोमेन बोला है मैंने, डोमेन। और दूसरा क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। Yes, ma'am. ठीक है, और क्लास तो यहाँ पे खत्म करते हैं, बट क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि कहाँ से हो और क्या है, so that I also get some idea? कि मुझे नहीं पता है कि आप लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई एम गेसिंग। Yes, ma'am. I'm preparing for day, and I'm in class 11th right now, and I'm from Lucknow. Okay, you're from Lucknow, so your schooling and everything, your hometown is in Lucknow, I'm guessing, right? Yes, ma'am. Okay, and what about you, MK? Ma'am, I am dropout from 12th and preparing for J. And Okay. I'm from Jaunpur, Mon, UP. Okay. Okay, guys, thank you. So maybe we'll meet in next class. Please try these questions. If you're not able to do it, then we'll discuss it in the next class. Okay.